کھڑا ہوا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے کھڑا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آپ کی کھڑی ہوئی دولت، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا پیسہ، آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا کیش اسی طرح سے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ جب گورنمنٹ منی پرنٹ کرتی ہے تو ساتھ ہی آپ کی ویلتھ بھی کم ہو جاتی ہے۔ میں لاہور جب آیا تھا تو میرے پاس صرف 1900 روپیہ تھا، اور وہ 1900 روپیہ بھی میری والدہ نے اپنے کانوں کی بالیاں بیچ کے مجھے دیا تھا، اور اس 1900 روپے میں سے 1400 روپیہ ایک ایسی ایجنسی جو کہ اسکیم تھی اس نے میرے سے بٹول لیا، تو میرے پاس صرف 500 روپیہ بچا تھا۔ اور اس 500 روپے سے آج میں جو کچھ بھی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، سارا کچھ ہے، بزنس ہے، اچھی ایجوکیشن ہے، کئی ملکوں کے میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہوئی ہے، 3 دفعہ میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس سفر کا آغاز تو صرف اس 1900 روپے میں سے ہوا تھا نا، اور اس 1900 روپے میں سے بھی صرف 500 روپیہ تھا میرے پاس۔ تو 500 روپے سے جو آغاز ہوا وہ آج ایک بہت بڑا تناور درخت بنا، اور مجھے یاد ہے کہ جو میرے پاس پہننے کے لیے پینٹ بھی نہیں تھی، پہننے کے لیے شرٹ بھی نہیں تھی، اور آفس میں کیونکہ پینٹ شرٹ پہننی ہوتی تھی تو میری وہ پینٹ شرٹ بھی میرے ماموں نے مجھے دی تھی، اور وہ پینٹ شرٹ لے کے، ایک پینٹ اور 2 شرٹیں جو میرے ماموں نے دی ہوئی تھی وہ لے کے میں لاہور میں آیا تھا، بالکل گاؤں کا بولا بالا سا لڑکا۔ اور وہ آغاز جو بالکل ٹوٹے ہوئے بروک انداز میں ہوا، اس کو بہت ساری چیزوں نے مل کے محنت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، کچھ ایسے اصول جن کو میں نے اپنایا، ان اصولوں کے ساتھ ایک بہت بڑا تناور درخت بن گیا۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ قسمت کا کھیل تھا تو شاید یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، شاید یہ میری ایفرٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی، شاید اوپر والا جو انصاف کرتا ہے اس کے انصاف کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی۔ تو جو آغاز ہمارا بہت تھوڑے سے ہوا، آج وہ ایک لیول پہ پہنچ گیا۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ویلتھ کو فکس کر سکتی ہیں۔ ان 10 چیزوں نے میرے لیے کام کیا، یہ 10 چیزیں آپ کے لیے بھی یقین دلاتا ہوں اسی طرح سے ہی کام کریں گی جیسے کہ میرے لیے انہوں نے کام کیا۔ دولت جو ہے، یہ اس کا اگر آپ خیال نہیں کریں گے، اپنی دولت کو اگنور کریں گے تو آپ کی دولت بھی آپ کو اگنور کرے گی۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا، اپنی دولت کا خیال رکھا، اپنے کریئر کا خیال رکھا تو اس پیسے نے میرا بھی خیال رکھا۔ آپ کے پاس جو کرنسی ہے وہ سوائے پیپر کے کچھ بھی نہیں، کیونکہ جب بھی گورنمنٹ نوٹ چھاپتی ہے، آپ کے بینک میں پڑا ہوا پیسہ، آپ کے گھر کے اندر پڑے ہوئے روپے آٹومیٹیکلی کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب گورنمنٹ نوٹ چھاپی جا رہی ہے اور یہ پیپر منی جو کہ اصل کرنسی نہیں ہے، آپ اس پیسے کو کیوں اس پیسے کے اندر رکھیں؟ آپ کا گول ہونا چاہیے اپنی ویلتھ کو بلڈ کرنا، اور یہ 10 قانون کے ساتھ اس ویلتھ کو آپ بلڈ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نئے ابھی جوائن کر رہے ہیں، میرا نام عدنان الحق، میں بزنس کوچ، موٹیویشنل سپیکر۔ شاید میں موٹیویشنل سپیکر کم ہوں لیکن میرا بزنس ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو میں بزنس پہ اور ویلتھ پہ ہی بات کرتا ہوں، اور میری جو کوز ہے لائف کی وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں میں بھی یہ چیزیں میں پیدا کروں۔ اکثر لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی، اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی 10,000، ہمارے پاس ہے ہی 30,000، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 40% رول جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے آپ زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کی سیلری میں سے جیسے ٹیکس کٹتا ہے، آپ کی سیلری میں سے جیسے EOBI کٹتی ہے، آپ کا امپلائر جیسے آپ کی سیلری میں سے ڈیڈکشن کر لیتا ہے، اسی طرح ہی اس 40% کی ڈیڈکشن کر کے آپ اس پیسے کو انویسٹ کریں، بزنس کے اندر انویسٹ کریں، کہیں دولت بنانے والے ایسٹس کے اندر انویسٹ کریں، کہیں کیش فلو کے اندر انویسٹ کریں، اور 60% اپنا سپینڈ کریں۔ اگر آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تو مزید پیسے کمائیں۔
अगर फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो अपने खर्चों को कम करें, चाहे रोटी ना खानी पड़े, चाहे कपड़े ना पहनने पड़ें, चाहे आपकी और लवाजमत पूरे ना हों, लेकिन वो 40% आपके लिए सेव करना बहुत ज़रूरी है उस गुर्बत के साइकिल से निकलने के लिए, उस गरीबी को मात देने के लिए। आपका अपने आप के ऊपर ये जबर करना बहुत ज़रूरी है। आपका 40% सेव करना आपकी दौलत बनाने के लिए नंबर 1 कंडीशन है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, इसमें भी आपको नुक्स नज़र आते हैं, तो फिर आपको किसी और पे नहीं, आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपकी औकात इतनी भी नहीं कि आप एक अपनी लिविंग के लिए वो 60% कमा सकें, तो फिर आपको अपने ऊपर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेहनत करें, अपनी ट्रेनिंग करें, ताकि आपका लेवल उस लेवल पे बढ़ सके जहाँ पे आप 40% बचा सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। शायद मेरी बातें आपको किताबी लगें, लेकिन ये किताबी बातें यकीन जानिए इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, इन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली। एक बच्चा जो 1900 रुपया लेके, वो भी अपनी माँ की बालियाँ बेच के आया था, सिर्फ 500 रुपया उसके पास बच गया था, उधार की पेंटें लेके आया था लाहौर के अंदर। उसने इस रूल को, इन्हीं किताबी बातों को जो आपको किताबी लगती हैं, इनको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बदला है। आप भी अपनी ज़िंदगी को यकीन जाने बदल सकेंगे। 47 का रूल अप्लाई करें। 47 का रूल क्या है? 47 का रूल ये है कि एक वीक के अंदर अगर आप 40 घंटे काम करते हैं तो 7 घंटे आपने अपने ऊपर काम करना है। यानी अगर आपकी जॉब 9 to 5 है, 5 दिन आप वर्क करते हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं, 8 × 5 40 घंटे आप काम करते हैं पर वीक में, तो आपने डेली का 1 घंटा यानी कि 7 घंटे वीक के आपने अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर कैसे काम करना है? अपने ऊपर आपने ऐसे लोगों को सुनना है जो आपके गोल की तरफ लेके जाएं। ऐसी बुक्स को पढ़ना है जो आपका लेवल अपग्रेड करें। इंसान वही है जो असल में उसका लेवल होता है वो उतना ही कमाता है, उससे ज़्यादा नहीं कमाता। अगर एक बंदे का लेवल 10,000 का है तो वो 10,000 ही कमाएगा, और अगर एक बंदे का लेवल 12 लाख रुपए का है, उसको उतार के छोड़ दो जॉब से, वो फिर जाके 12 लाख ही कमाएगा। तो आपको अपने पैसों को बढ़ाने के लिए अपना लेवल इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। नेवर लूज़ मनी, नेवर लूज़ मनी, नेवर लूज़ मनी। कभी भी पैसे को ज़ाया मत करें। ये वेबसाइट के ऊपर पैसा मत लगाएं, ये आपके साथ फ्रॉड करके भाग जाएंगी। ये जितनी वेबसाइट आपको लगती हैं बड़े बड़े कमीशन दे रही हैं, ये भाग जाएंगी। ये बिज़नेस नहीं है मेरे दोस्त, मत लगाओ इसके पैसा। मैं दुहाई आपको दे रहा हूँ, इसके ऊपर पैसा मत लगाओ। इन वेबसाइट के ऊपर पैसे को ज़ाया मत करो। पैसे को ऐसी चीज़ के ऊपर ज़ाया मत करो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। ऐसी शर्ट मत बाय करो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, जो पड़ा रहेगा। ऐसा सूट मत बाय करो जो पड़ा रहेगा। ऐसे खानों पे पैसा मत लगाओ जो आपको जिसकी ज़रूरत नहीं। ऐसी चीज़ें मोबाइल मत करो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं उसके ऊपर पैसा मत लगाओ। नेवर लूज़ मनी। अगर आप अपनी रकम का, अपने पैसों का, अपनी दौलत का ख्याल नहीं रखोगे, आप अपनी दौलत को इग्नोर करोगे, यकीन जानिए, यकीन जानिए, यकीन जानिए, आपकी दौलत आपको इग्नोर करेगी, आपका पैसा आपको इग्नोर करेगा, और आप फिर वही गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे, वही सेम बातें मेरे दोस्त रिपीट करते रहेंगे। नेवर लूज़ मनी। ऑलवेज इन्वेस्ट इन कैश प्रोड्यूसिंग एसेट। कैश प्रोड्यूसिंग एसेट, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग की ज़ुबान में कैश फ्लो। हमेशा कैश फ्लो पे इन्वेस्ट करो, कैश फ्लो पे इन्वेस्ट करो, कैश फ्लो पे इन्वेस्ट करो। ऐसे बिज़नेस पे इन्वेस्ट करो जिसकी आपको समझ आ जाए कि इससे पैसे कैसे आएंगे। ऐसे बिज़नेस पे इन्वेस्ट करो जहां से आपको पता चल जाए कि इस बिज़नेस से कैश कहां से आएगा। जब तक आपको ये समझ नहीं लग रही कि इस बिज़नेस से कैश कहां से आएगा, जब तक आपको समझ नहीं लग रही कि इस बिज़नेस से पैसे आएंगे, उस एसेट पे मत इन्वेस्ट करो। हमेशा कैश फ्लो के ऊपर इन्वेस्ट करो। अपने पैसे को कम से कम, अपनी स्पेंडिंग को कम से कम रखें। अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। क्या चाहिए आपको? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का क्या मतलब है
کہ ایک جگہ سے آپ کو 5,000 آ رہا ہے, ایک جگہ سے آپ کو 10,000 آ رہا ہے, ایک جگہ سے آپ کو مے بی 500 روپیہ آ رہا ہے. یہ ڈفرینٹ ملٹیپل سورس آف انکم مل کے آپ کی بہت ساری انکم بن جاتی ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی ویلتھ کتنی بلڈ ہو رہی ہے. آپ کو اس کی اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب آپ کوئی سورس اکٹھا کرنا ہو, یعنی کہ جہاں سے آپ کو 2-4 لاکھ روپیہ پر منتھ آئے, ایسا سورس آپ نے ارینج کرنا ہو, یا آپ کو 1 کروڑ روپیہ پر منتھ آئے, ایسا سورس اگر آپ نے ارینج کرنا ہو تو وہ نہیں ہو پاتا, کیونکہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کے اوپر ٹیم ممبر بھی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے سورسز ارینج کرتے جاؤ, کہیں پہ 5 لاکھ کا, کہیں پہ 4 لاکھ کا, آپ کی جیب کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا, لیکن آپ کی ویلتھ بھی بلڈ ہوتی جائے گی, آپ ترقی بھی کرتے جاؤ گے. نیکسٹ رول جو بہت امپورٹنٹ ہے, نیور انویسٹ ان اندر سورس آف انکم جب تک آپ کا پچھلا انکم سورس سٹیبل نہ ہو جائے. بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. سیکنڈ سورس پہ تب تک انویسٹ نہ کرو جب تک پہلا سورس آف انکم آپ کا سٹیبلائز نہ ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی اپرچونٹیز لوز کر دیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں انویسٹ نہ کریں, اچھی اپرچونٹی میں انویسٹ ضرور کریں, لیکن ایک رول آف تھمب آپ بنا لیں, ایک سٹینڈرڈ آپ اپنا رکھ لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ سٹیبل کر کے, اس سے کیش فلو جنریٹ کر کے, اس کے اندر جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ کر کے, پھر آپ نیکسٹ انویسٹمنٹ کے اوپر موو کرو گے, پھر آپ نیکسٹ کیش فلو انکم جنریٹنگ ایسٹ پہ آپ موو کرو گے. اگلا آپ کا رول ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, سٹے بروک. ٹوٹے ہوئے رہو, ایسے رہو جیسے جیب میں پیسہ ہے ہی کوئی نہیں, اسی طرح رہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں 1900 روپیہ لے کے آیا تھا, اس 1900 روپے میں سے 1400 روپیہ اس میں سے وہ بھی کسی نے لوٹ لیا. میرے پاس صرف 500 روپیہ بچا تھا, کیونکہ میں بروک تھا, ٹوٹا ہوا تھا, جیب میں پیسے نہیں تھے بالکل بھی. تو میں آگے کچھ نہ کچھ کرنے کی طلب رہی, ہمت رہی, فوکس رہی. اب آپ بروک کیسے رہیں گے؟ اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو بروک کیسے رہیں گے؟ بروک اس طرح رہیں گے کہ جو پیسہ آتا ہے, جو پیسہ خرچنے کے بعد بچتا ہے, فوراً سے سارے کا سارا آپ انویسٹ کر دو اپنے ایسٹ کے اندر. ہر منتھ آپ کے پاس پیسے پہلے سے ہی نکل جائیں, آپ کے پاس پیسے ہوں ہی نہ, سمجھ ہی نہ آئے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں ہی نہیں, جیب کے اندر ٹوٹا روپیہ بھی نہ ہو آپ کے پاس, اور پھر آپ بروک رہیں تاکہ آپ کو مزید پیسہ کمانے کی طلب ہو, تاکہ آپ مزید پیسے کی طرف ایک عقاب کی طرح چپکیں پیسے کو, اور پھر آپ ارننگ بھی کریں گے اور آپ جو ہے وہ سکسیسفل بھی جائیں گے. ہمیشہ ایتھیکل سورس سے ارننگ کرنی ہے, ان ایتھیکل سورس سے ارننگ نہیں کرنی. ہمیشہ اپنے حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے, انٹرسٹ سے پیسہ نہیں کمانا. یہ تو سب سے پہلے ہے, بینگ مسلم بھی, بینگ ہیومن بھی, اور بینگ انسانیت بھی. یہ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے. لیکن جہاں آپ کا پیسہ ہے وہاں پہ آپ نے چپک جانا ہے, چپٹ جانا ہے, اور آپ نے اس پیسے کو تلاش کرنا ہے. ابھی تک ہم نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں اس کے اوپر آپ اگر ایگری کرتے ہیں تو ایگری لکھیں, اگر آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کو کامنٹ میں لکھیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ نیور گیو اپ. نیور گیو اپ. اپنے فائنینشیل گول بنا لیں. اپنے فائنینشیل گول جو بھی آپ نے بنائے ہیں ان گولز کے سے پیچھے کبھی مت ہٹیں, چاہے جو بھی ہو جائے. میری اپنی لائف کے اندر بڑی دفعہ یہ موڑ آیا جب مجھے لگا کہ میں فیل ہو گیا, جب میرے پیسے 1900 میں سے 1400 بھی لٹ گئے تھے, مجھے لگا تھا میں فیل ہو گیا. میں جاب کر رہا تھا اور جاب کے اندر مجھے میری کلاسیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا, میں اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ میں فیل ہو گیا. جب میں نے جاب کے اوپر میرا باس, ایک گھٹیا قسم کا باس مل گیا, تب بھی مجھے احساس ہو رہا تھا شاید میں فیل ہو گیا. جب میں نے اپنی ایگزام فی کے پیسے دینے تھے, آخری ڈیٹ تھی, میرے پاس فی کے پیسے نہیں تھے, تب مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں برباد ہو گیا, لٹ گیا, میں گیو اپ کر دوں, واپس چلے جاؤں. مجھے پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ کی جاب ملی, تب بھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں وہاں پہ چلے جاؤں. مجھے ایک
और जगह गवर्नमेंट की जॉब मिली, मुझे तब भी लग रहा था कि आसान रास्ता है, मैं वहाँ पे छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन मैं अपने गोल से पीछे नहीं हटा। अपने गोल से कभी मत पीछे हटें, हमेशा अपने गोल का इकाब की तरह फॉलो करें। नेक्स्ट रूल आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपको बात शायद समझ ना आए, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। हमेशा तलाश करें, वेयर इज़ माई मनी, वेयर इज़ माई मनी, वेयर इज़ माई मनी, वेयर इज़। ये आपके हमेशा जहन में रहना चाहिए कि मेरा पैसा किसके पास है। उस बंदे को ढूंढना है जिसके पास आपका पैसा है। अगर आपके पास जेब में कोई रुपया नहीं, क्योंकि आपने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट पे लगा दिए, कैश फ्लो प्रोड्यूसिंग एसेट पे लगा दिए, अब आपको चाहिए कि आपकी मनी किसी के पास तो है, आपकी मनी लोगों के पास ही है। देखें, आप पैसा कहाँ से कमाते हो? आप पैसा कमाते हो लोगों से। अगर जॉब भी करते हो तो कहाँ से पैसा कमाते हो? अगर जॉब भी करते हो तो लोगों से पैसा कमाते हो। अगर बिजनेस करते हो तो कहाँ से पैसा कमाते हो? अगर बिजनेस करते हो तो भी लोगों से पैसा कमाते हो। अगर आप तो लोगों के पास आपकी मनी है, उन लोगों को तलाश करें जिनके पास अपनी आपकी मनी है, और उन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करें। ट्रांजैक्शन के अंदर ही पैसा है। ट्रांजैक्शन जितनी दफ़ा घुमाएंगे उतनी दफ़ा पैसा आपका बढ़ेगा। आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा है, उसने 100 रुपये के चने लिए, उसने चने ले लिए 100 रुपये के। अब वो दिन को सुबह गया, जाके चनों को बेच आया, 100 रुपये के पूरे चने उसने बेच दिए। नेक्स्ट दिन उसके पास उसके ऊपर उसने प्रॉफिट रखा 100 रुपया, 200 रुपये के उसने 100 रुपये के चने बेच दिए। अब उसके पास दिन में 200 रुपया है। अब उस 200 रुपये को वो लेके जा रहा है। अगले दिन फिर उसने 200 के ऊपर 200 प्रॉफिट रखा, 400 के चने बेच दिए। अब उसके पास 400 रुपया है। फिर उसने 400 के चने बेच 400 800 के बेचे, 1600 के बेचे, 3200 के बेचे, 2400 के बेचे। इसी तरह उसकी वेल्थ बढ़ती रही। ये क्या किया उसने पैसे को घुमाया। पैसे को घुमाने से वेल्थ मिलती है। खड़े पैसे के अंदर कुछ भी नहीं, ना बरकत है, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ना कुछ और है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो आपके अपने पैसे को घुमाना है। ये जो घुमाने की टेक्निक है, ख़ास तौर पे हमारे जो कॉरपोरेट के लोग हैं, जो सेल के लोग हैं, जो बिज़नेस के लोग हैं, ये मेरी घुमाने की बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि वो लोग अपने पैसे को भी नहीं घुमाते, वो तो वेंडर के पैसे को घुमाते हैं। वेंडर से 90 दिन का उधार लेते हैं और फिर उस ट्रांजैक्शन को 3 दफ़ा घुमा देते हैं। यानी लोगों के पैसे से बिजनेस करते हैं, लोगों के टाइम पे बिजनेस करते हैं, और सिर्फ घुमाने से ही ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। आपको क्या लगता है ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन होती है, इनके पास पैसा होता है? इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। इनकी जो कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव में आ रही होती है। लेकिन फिर वो ढूंढते हैं कि मेरी मनी कहाँ पे है, मेरा पैसा कहाँ पे है। उस पैसे को तलाश करते हैं, उस मनी को तलाश करते हैं, और फिर वो उन लोगों के पास जाते हैं, उन वेंडर के पास जाते हैं, उनसे उधार लेते हैं, और सेल वालों को बम्बू करते हैं कि बम्बू, ये मेरी जो बम्बू की बात है, बहुत सारे कॉरपोरेट के लोग समझ गए होंगे बम्बू का क्या मतलब होता है। और अपने सेल वालों को बम्बू करते हैं कि आप ट्रांजैक्शन को घुमाओ। सेल वाले ट्रांजैक्शन घुमाते हैं, फिर वो वेंडर को पेमेंट करते हैं, और उसके ऊपर वो मर्सिडीज़ भी ले रहे होते हैं, उसके ऊपर वो कोठियाँ भी बना रहे होते हैं, उसके ऊपर वो बंगले भी ले रहे होते हैं। तो बम्बू करना सीखें और पैसे को घुमाना सीखें, और फाइंड आउट करें वेयर इज़ माई मनी। चीज़ों को हमेशा रेंट पे लिया करो, लीज पे लिया करो। जो आपकी यूज़ की चीज़ें हैं वो बाय मत किया करो, उसको रेंट पे लिया करो या उसको लीज पे लिया करो। ऐसी कोई भी चीज़, जैसे अगर आप कोई ग्लासेस ले सकते हो, उसको भी आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर लो, लीज के ऊपर लो, रेंट के ऊपर लो। कपड़े भी अगर आपके अच्छे अगर आप ले सकते हो तो बेशक जो 5 साल जहाँ पे आप ब्रोक हैं, जहाँ पे ब्रोक फिर रहे हैं आप और अपना फ्यूचर बना रहे हैं, अपनी वेल्थ बना रहे हैं, चीज़ों को इंस्टॉलमेंट पे लें या उनको किराए पे लें। जब ओन करेंगे चीज़ें तो आपका पैसा ऐसी चीज़ों के अंदर फंस जाएगा जो कि आप के किसी काम का नहीं, और आपको उस पर इनकम नहीं आ रही। हमेशा अपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ से इनकम आ रही है, ऐसी जगह पे मत इन्वेस्ट करो जहाँ से इनकम नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे आप ही जिस मोबाइल से मेरी ये लाइव वीडियो इस वक्त देख रहे हो और नीचे कमेंट कर रहे हो, ये मोबाइल बाज़ लोगों के हाथ के अंदर 1.5 लाख का भी मोबाइल पकड़ा होगा, बाज़ लोगों के हाथ के अंदर 40 हज़ार का भी मोबाइल पकड़ा होगा। लेकिन जब मैं उनसे पूछूंगा आपकी सैलरी कितनी है,
कोई बताएगा मेरी 20,000 है, कोई कमाएगा बताएगा मेरी 50,000 है। और तूने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जिनकी कोई वक़्त नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, आज आप उनके पास जाएंगे भूखे, आपको रोटी तक नहीं देंगे, चाय तक नहीं पूछेंगे। उनके लिए आपने 1.5 लाख रुपए का मोबाइल ले लिया, उनके लिए आपने 10,000 का सूट पहन लिया, उनके लिए आपने 15-15, 20-20 हज़ार की और चीज़ों के ऊपर स्पेंडिंग कर दी, और उसके बाद आपने अपने आप को किसी की ग़ुलामी में बेच दिया। वहाँ पे 30-30 हज़ार का रगड़ आपने खाया। बिल्कुल जब आपका पीरियड गुजर जाए, जब ब्रोक पीरियड गुजर जाए, जो वेल्थ बिल्डिंग का पीरियड गुजर जाए, फिर आप इन्वेस्ट करो। मैंने कई साल सिर्फ 2,000 का वो जो नोकिया मोबाइल हुआ करता था और वही यूज़ करता था, टूटा फूटा मोबाइल यूज़ करता था। जब तक मुझे ज़रूरत नहीं थी मैंने बाय नहीं किया। मैं भी आपकी तरह मैं भी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करता रहा हूँ, लेकिन उन बेवकूफ़ियों से मैंने सीखा है ज़िंदगी में, अपने आप को मैंने बिल्ड किया है। मैं नहीं चाहता कि आप वो बेवकूफ़ी करें। आप तो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मेरे से ज़्यादा गुड लुकिंग हो, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं, माशाल्लाह से वैसे ही प्यारे लगते हो आप, तो क्यों आप लोगों के लिए आप मोबाइल दिखाने के लिए, यार आपकी शक्ल मोबाइल से ज़्यादा प्यारी है, उसको दिखाया करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करो। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे मेरे भाई, अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो जो बोलोगे वो लोग ऐसे सुनेंगे जैसे फूल निकल रहे हैं। फिर कोई आपकी शक्ल नहीं देखेगा, फिर कोई आपके कपड़े नहीं देखेगा, फिर आपका कोई मोबाइल नहीं देखेगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर आप मुश्किल वक्त में आ जाओगे, कोई आपका साथी नहीं होगा। भाई भाई का साथ छोड़ देता है। माँ बाप भी उस बच्चे की इज़्ज़त नहीं करते जो पैसे नहीं कमाता। जो कमाऊ पुत्तर होता है उसी की इज़्ज़त होती है। जो कहते हैं ना, पंजाबी दा मुहावरा है, जेदे घर दाने ते ओदे कमले भी सियाने। तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसके घर दाने ओदे कमले भी सियाने। और टुटा फुटा मोबाइल भी फिरेगा तो कहेगा यार देखो कितना आजज बंदा है। सादा कपड़े पा के भी फिरेगा, कह देखो यार कितना आजज बंदा है, यार सादा जी कपड़े पा के फिरदा है और एने इहदे कोल पैसे है। जब आपके पैसे आपको दिखाने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपके पास पैसे नहीं होते। जब आपके पास होता है फिर आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप बस ऐसे ही फिरते हो, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, हम जो बात करते हैं ना पैसे की, हम बात करते हैं उन लोगों की जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने अपने आप को खुद बिल्ड किया है। हम उन लोगों की बात नहीं करते जिनके पास खुद ब खुद दौलत आ गई, बाप की आ गई और वो उसकी बेस पे बैठ गए, उनकी बात नहीं करते। मैं जब भी बात करूंगा आपसे ऐसे बंदे की बात करूंगा जो मेरी तरह 1900 रुपया लेके आया था, 1400 रुपया अपनी कमली में गवा दिया, अपने भोलेपन में गवा दिया, 500 रुपया लेके लाहौर शहर के अंदर धक्के खाने के लिए वो आ गया और फिर उसने बिल्ड किया। हम जब बात करेंगे उन्हीं लोगों की बात करेंगे। तो आपने भी वही बंदा बनना है जिसने अपने फ्यूचर बिल्ड करना है, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का। देखो यार, देखो दौलत लेके तो कहीं नहीं जानी, दौलत जो है वो आपने कब्र के साथ तो नहीं लेके जानी। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर दौलत नहीं होगी ना तो दुनिया में जलील हो जाओगे। अगर दौलत नहीं होगी ना तो किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे, बहन भाई को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहोगे। दौलत वाला बंदा कितना ही सदका जारिया कर देता है। एक फैक्ट्री, एक बिज़नेस आप खोलते हो, अंदाज़ा करो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो, अंदाज़ा करो कितनी फैमिली जो हैं वो चलती हैं। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले अरसे की बात है। और मैं पकोड़े खाने लगा, लाहौर में मैं गया हुआ था उन दिनों, और मैं पकोड़े खाने लगा तो उस बेचारे की टांग कटी हुई थी। मैंने कहा मेरे दोस्त ये तेरी टांग कटी है, तू बड़ा मेहनती बंदा है, मुझे तुझे देख के बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। उसने कहा सर जी भुखे मार दे तो की कर दे। मैंने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा यार मैं एक कंपनी के अंदर जॉब करता था और उस कंपनी के अंदर मेरी जो टांग है ना, ये उसके मशीन के बीच में आ गई, तब से मेरी टांग कट गई। जब मैं काम का नहीं रहा तो कंपनी वालों ने उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। उसके बाद मेरी बीवी बच्चे भी छोड़ गए, मैं अकेला रह गया। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि चल यार पकौड़ों की रेहड़ी लगा लो। अब मैं पकौड़ों की रेहड़ी लगाता हूँ। आप जैसे साहब लोग गाड़ी से उतरते हैं, मेरे दोस्त डिफरेंट उतरते हैं, मेरे से पकौड़े खाते हैं। अल्लाह का बड़ा बड़ा लाख लाख शुक्र है। तो मेरे भाई देखो, जब तक वो बंदा कमा रहा था उसकी बीवी बच्चे भी उसके साथ थे, उसकी इज्जत भी थी और उसको रोज़गार भी मिल रहा था। जैसे ही उसकी टांग टूटी उसका कोई भी नहीं रहा। तो पैसा कमाना यार ज़रूरी है। ज़िंदा है तो रोटी भी खानी है, ज़िंदा है तो कपड़े भी पहनने हैं, ज़िंदा है तो आपने सारा कुछ करना है। तो आप ये मत कहा करो कि यार हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो यार आपको चाहिए